सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच्चे जुगाद सच्चे है भी सच्चे नानक होसी भी सच्चे जब लो नहीं पागल लार दे तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र में बूढ़त थे मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ न आयो बेसुमार अथा अगंत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हाजरा हजूर जारा जरूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच बैठ के शांति दे पुंज श्री हरमंदर साहिब जी के रचयिता पोथी साहिब जी के गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिरजनहारे शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के शहीदी पुरब के याद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी 10-15 मिनटां के राही साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के शहादत के नाल जुड़िए। उस तो पहला मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह के कोलों बख्शिश दे विच मिली हुई फतेह सारे ही प्यार सत्कार निमरता के नाल गज वज के बुलंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जो शांति के पुंज हैं जो शांति के दाते हैं उन्होंने शहादत का अज का दिन है। पुराना इतिहास जदों आप वाचते हाँ तकरीबन वो चंदू अति प्रीति चंद तक सीमित हो जाता है। अरदास बेनती करे असल दे विच सन 1521 दे विच जदों मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ऐमनाबाद के अंदर बाबर को मिले ये टक्कर उदों ही प्रारंभ हो गई सी। फिर ये वक्ती ना रही ये पुश्ती बन गई। पहला बाबे की ते बाबर की दी टक्कर हुई। फिर हुमायूं गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह के ऊपर चढ़ के आया। फिर जहांगीर ने साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह को शहीद किया। फिर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के सीस के ऊपर औरंगजेब ने तलवार चलाई। उस तो बाद मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह के ऊपर औरंगजेब ने
ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਏ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੱਟੜ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1605 ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵੀ ਜੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਝੂਠ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ
ज़्यादा समा बोल वाला झूठदा ही रहिंदा है। जो बड़ा अत्याचार हो चुकता है उस तो बाद जाके किते सच की कोई कीमत पैंदी है, सच के बारे कोई लोगों को पता चलता है। इस वास्ते जहांगीर ने सत्संगी जनों 20 मई को हुक्म जारी कर दिता सीगा कि गुरु अर्जन देव जी का सारा कारोबार माल सबाब की है मुर्तजा खान के सुपुर्द करके उन्होंने गिरफ्तार करके लिया जाए। उन्होंने जी गिरफ्तारी हुई वो 22 तरीक को अमृतसर तो मुर्तजा खान ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पहुँचते पहुँचते सत्संगी जनों तकरीबन 24 तरीक हो गई सी। 2 दिन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह को समय की हुकूमत ये 3-4 गल्लां पुछती रही। पहला दोष उन्होंने ये लगाया कि तुसी खुसरो नूं पनाह क्यों दी, क्योंकि जहांगीर का बेटा सी उसने बगावत खड़ी कर दी सी। बगावत खड़ी करके जो वो निकलिया पंजाब दे विच दी निकलिया, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं मिलिया, लंगर दे विच उसने लंगर छकिया ते अगे चला गया। इस गल उन्होंने कि खुसरो नूं तुसी पनाह दी है। इतिहास विच यह भी लिखा कि तुसी उसनूं तिलक भी लगाया है। दूसरी गल हुकूमत ये कह रही सी कि तुसी चंदू दी, क्योंकि चंदू दीवान सी सत्संगी जनों राजे का, कि तुसी चंदू की लड़की का रिश्ता मोड़ दिता है, इस वास्ते तुसी रिश्ता वापस ले लो। तो तीजी गल वो ये कह रहे सन कि जिहड़ा तुसी पोथी साहिब जी की रचना की है ये विच तुसी मुहम्मद साहिब जी की बाणी अंकित करते हो। मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने पातशाह को पहली गल ये कही, कहते है जहांगीर एक दिन तेरा बाप अकबर भी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के वक्त लंगर दे विच बैठ के पंगत दे विच बैठ के भोजन छक गया ते अज तेरा बच्चा खुसरो तेरा बेटा इस लंगर दे विच लंगर छक गया तो तेनू दुख किहड़ी गल दा है। इस वास्ते जिहड़ा लंगर की प्रथा है ये तो मैं सर्व सांझी वालता दे वास्ते प्रारंभ की हुई है, मैं उसनूं कोई पनाह नहीं दी। दूसरी गल कह लगे चंदू की लड़की का जो रिश्ता है वो तुसी लै लो। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते असी तो रिश्ता मंजूर किया सी, पर चंदू ने ही कह दिता सीगा संगतां दे अंदर कि तुसी की कीता कि चुबारे की इट तुसी मोरी नूं लगा आए हो। तो मेरियां जिहड़ियां प्यारियां संगतां हन जिस संगत नूं मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने महानता दी है उन्होंने कह दिता सी कि यह रिश्ता नहीं लेना, इस वास्ते मैं संगतां दा कहना भी मोड़ांगा नहीं, मैं रिश्ता नहीं प्रवान करांगा, उन रिश्ता नहीं जोड़िया जाएगा। वो कह लगे फिर जिहड़ी तुसी पोथी साहिब की रचना की है इहदे विच तुसी मुहम्मद साहिब जी की बाणी अंकित कर दिओ। मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहने लगे जहांगीर मैं इहदे विच कोई अंकित किया है, मैं कोई अपनी मत के मुताबिक, मैं अपनी कोई सियाणपा के मुताबिक, मैं किसी के कहने के मुताबिक इहदे विच कुछ नहीं अंकित किया। इहदे विच मैं अंकित किया जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, कि जो मैनू परमात्मा के वलों बाणी उतर रही है मेरी जुबान तो सिर्फ एक टूटी बनी है, पानी की धार उसका प्रवाह पानी का प्रवाह तो मैनू पिछों आ रहा है। इस वास्ते तेरे जबर के थले तेरे इन्हां प्रभाव के थले मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर पोथी साहिब मुहम्मद साहिब की बाणी भी अंकित नहीं करांगा। वो कह लगे फिर थानू सच्चाई मौत दी जाएगी। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह मुस्कुरा के कह लगे कि जिस दिन मैं आया हाँ ना उस दिन मैं अपने साहिबजादा हरगोबिंद जी को कह आया हाँ, बाबा बुढ़ा जी ने गल कह आया हाँ कि हुण उत्थे शरीर लगेगा। इस वास्ते मैं तो अपनी जो गुरियाई की रस्म सी वो भी मैं कर आया हाँ, इस वास्ते मैं मौत के मुँह के विच जाण दे वास्ते तैयार हाँ। ते सत्संगी जनों जदों सजा दी गई 4 दिन तसीहे दिते जाते रहे। पहले दिन जो तसीहे दिते साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के वस्त्र उतरवा के रावी के कंडे के उपर रेता के उपर सत्संगी जनों अज के महीने के विच आपां कदी जाके पंजाब के अंदर रेता जिहड़ी तपी हुई होवे ना उत्थे पैर भी रखे तो साडे पैर भी जल रहे होंदे हन। कहते जिस दिन पहले दिन तसीहे दिते गए साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के वस्त्र उतार के तत्ती रेता के उपर लिटा दिता गया। 2-4 घंटे लिटाई रखिया।
बात दे विच कहंदे आए जिहड़े हुक्मरान दे बंदे सन सिपा सलार आए कहण लगे हुण कोई गल मनदे हो तिन्हां चारां गल्लां दे विचों कहने लगे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कि जो मैं पहले दिन बादशाह के सामने गल्लां कह दित्तियां हन मैं उन्होंने उपर अटल हाँ। वो कहते कुछ कहना चाहते हो कहते हाँ इन्नी गल कहना चाह रहे हाँ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे कि मेरा परमात्मा जो कर रहा है वो मैनू मिठा लगता है मेरी जबान तो उस तो बाद भी बस परमात्मा का नाम ही गा रही है तो यही मंगती है मैनू कुछ नहीं चाहिए। कहते दूसरा दिन आया दूसरे दिन पता की किया गया सत्संगी जनों तत्ती तवी के ऊपर बिठाया गया। कहते जो तत्ती तवी से बिठाया गया फिर सिपा सलार आए कहने लगे कुछ कहना चाहते हो। मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने इको गल कही उलाहनो मैं काहू ना दियो मन मीठ तुहारो पियो। कहते मैं किसी को कोई गिला शिकवा नहीं करता किसी को मैं कोई अलांबे नहीं दिंदा प्रभु का किता मिठा लग रहा है। कहते तीजा दिन आया तीजे दिन उपर की देग दे विच बिठाया गया। कहते उपर की देग विच बैठ के जदों कहते शरीर के ऊपर छाले पै गए फिर सिपा सलार आए पूछते हैं हुण कुछ कहना चाहते हो। तो उस दिन पता गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने की किया सी कहते मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना। कहते मेरा मित्र जो करता है मैं एक गल कह के बस समाप्ति कर देवां। कहते तीसरे दिन ना कहते पता की होया मियाँ मीर जी भी आए सन। कहते जो कहते उपर की देग च बैठे हैं सीस के उपर तत्ती रेता पै रही है मियाँ मीर जी ने आके हाथ जोड़ के कहा सी सच्चे पातशाह मैनू हुक्म करो मैं दिल्ली ते लाहौर की इट खड़का दियाँ मैनू हुक्म करो धरती ते पताल पुठा कर दियाँ। मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहने लगे मियाँ मीर जरा उपर का झात मार। उपर का मतलब से जड़ी अवस्था दे विच खड़ा होके मैनू एक गल कह रहा जड़ी अपनी अवस्था में उच्चा चक। कहते जदों मियाँ मीर ने नेत्र बंद किए तो उसनों की दृश्यमान होया कि 33 करोड़ देवता सत्संगी जनों हाथ जोड़ के खड़ा है तो पंजवें पातशाह नूं कह रहे कि हुक्म करो की करिए। कहते मियाँ मीर ने जो अखां खोलियां उहदियां अखां विच हंझू आ गए हाथ जोड़े कहने लगा सच्चे पातशाह जो 33 करोड़ देवता हाथ जोड़ के खड़ा है फिर तुसीं इस तसीहे क्यों सह रहे हो। तो उत्थे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कहा सी कहते मियाँ मीर वो परमात्मा मेरा मित्र है। तो मियाँ मेरे एक गल का ध्यान रखी जिस दिन हरमंदर साहिब के विच मैं सिंघासन ते बैठा हुंदा सी ते मेरे सिर के उपर जिहड़ा चौर हुंदा सी वो चौर के जिहड़े हत्थ सन वो भी मियाँ मीर वो भी सत्संगी जनों कहते मेरे मित्र परमात्मा दे सन। कहते जे अज सीस के उपर तत्ती रेता पै रही है ये किसी भड़भुंजे के हत्थ नहीं ये चंदू के हत्थ नहीं ये जहांगीर के हत्थ नहीं ये पृथ्वी चंद के हत्थ नहीं ये भी मेरे मित्र परमात्मा के हत्थ हैं। ते सत्संगी जनों जो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कहा सी ना किव सचियारा होइए किव कूड़ा टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो उसका जे प्रैक्टिकल जीवन देखना होवे कि हुक्म किवें जिया जाता है हुक्म दे विच किवें रहा जाता है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने हुक्म नूं जी के दिखा दिता। सत्संगी जनों उन्हां दी शहादत दे विचों आपां यही उपदेश लैना यही आपां अरदास करनी कि सच्चे पातशाह कभी समा बन जाए कभी मौका बन जाए असीं भी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे सिख हाँ सच्चे पातशाह सानू भी मौका बन जाए असीं भी इस तरह शहादत प्राप्त करके असीं तुहाडे दर ते प्रवान हो जाइए जिस सदका साडे सारियां दा ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले दियां दातां बरकतां खुशियां आशीर्वाद आपां सबनों हासिल होण। सो सत्संगी जनों कल नूं परम पूज्य बाबा जी जो कि सारे इन्हां स्थानां की अगवाई करते हैं उन्होंने तकरीबन कल दोपहर के वक्त पहुँचना है। सब संगतां ने दर्शन करके साध के संग नहीं किचकार दर्शन भेटत होत निहाल महापुरुषों के दर्शन करके जीवन सफला करना है। जो पूर्णमासी है वो 13 जून शुक्रवार की है जो संग्रांद है सत्संगी जनों 15 जून ऐतवार की है। सो सारे ही इत्थे दे रहने वाले महापुरुष संत बिकर सिंह जी और जो विहंगम जन हैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद। दासरे आए सन नानकसर दे विच ही रह के
गुरु के बचनों की सिक्ख्या सीखी है। सत्संगी जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप रब वर्गियां संगतां दा भी, क्योंकि कल नूं दस रहे हैं अगे जाना। इतने दिनों में सेवा करदे होए भुल्लां हो गई होण, होईयां भुल्लां दी माफ़ी दिओ। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।